from Jharkhand, and I must say I'm feeling very nostalgic because I'm speaking here after 19 long years. I completed my post-graduation from TISS. I did my master's in social work. So TISS is always very special in my heart, and I feel familiar to all the trees and the crows and every small particle of this campus. So, and I'm really happy that T16 gave me an opportunity to be here after such a long time. Would just quickly introduce you to the Jharkhand context. Jharkhand is a state which has a significant proportion of tribal population. Official statistics says that more than 26% of our people are tribal. But if we look at the cultural context, there may be more people because many of them are not counted as tribal. They might be counted as Hindus or Christians, or they must be seen as members of any other community. But when you look at it deeply, you will see that almost 40 to 50% of our people have a tribal background. There are 32 different tribes, and there are 90 different languages which are spoken in Jharkhand. Jharkhand is also a state which operates at 40%, 45% vacancy level. So we don't have, we have 45 positions sanctioned in Jharkhand Council of Academic Research and Training, but we do not have a single person who is a permanent employee of that segment. So most of the people are on deputation. So within this diversity and context, our initiative was placed. When Jharkhand was actually forming into a state, it has only been, say, 19-20 years since Jharkhand has come into existence. It has seen 13 different CMs, and then in between president rules, a lot of political instability. And during that period, when Jharkhand was about to kind of become a state, we saw COVID pandemic. We also saw a lot of efficiency and effectiveness measures which were introduced by governments to bring more efficiency, but at the same time they also had an implications on recruitments, on many processes. So we had school mergers, and we had an issue of distance between the hamlets. The hamlets are really scattered, and when you merge schools, then it becomes little difficult for children to come to another school. So within that context, our teachers had started using, experimenting with technology even before pandemic, but what technology actually entails was something which they were also learning. When pandemic came, it meant a lot of difficulty for almost all children, because not even their grandparents had witnessed such a situation. Everybody might have seen some curfews or some floods which were there for a short while, but the entire 1 year of complete closure was something which was never seen before. Jharkhand is also a source state for a lot of migrant labour, so many migrant labourers were coming back. It was increasing stress on the families which already had very little resources for survival. And in that situation, when our teachers could connect with them through technology, it not only meant continuation of education, but it also meant that the state is with you at this point of time. It also meant that they felt that moral security, that somebody known to me is trying to contact me, is trying to reach me out. There were so many protection issues which children were facing, and if teachers are not talking to their families, probably they will end up getting married, or because of financial distress, they may end up getting trafficked in such a situation, in lieu of jobs. So it meant more than just education. And at this point of time, when TISS came up with this course, it was really a kind of something which was like a blessing for our context. And our teachers were already trying to use technology in whatever little way it was possible. Some of them were trying to develop video lessons. Some of them were trying to reach children through network of WhatsApp groups. They were also not used to of managing such huge networks of WhatsApp groups. And phone was a shared commodity in the household. So the same phone will be used by father of the child to send some Bhojpuri songs. And teachers did not know how to control these factors. These were beyond their control. And so coming back to
the importance of the course. Often, whenever we talk about digital education or use of technology, there is polarization of views. At one end, we see people who really think that this is such an important thing, and on the other spectrum are those people who feel that it is kind of leading to replacement of teachers, or it is not human, it is something which is counterproductive, it should be stopped at any cost. Whereas, as it is being rightly said in this conference again and again, technology is a tool which we can use optimally to reach children. Teacher remains at the center of the technology. Teacher is the one who is the architect of the entire program and can shape and use technology to influence children in a way that they get benefited. So that was the gist of the program, and I would say that our teachers performed really well. They were very passionately involved in the process. They were also reaching out to the TISS team, Sohini, Durba and everyone with their doubts and queries, and they were, and as I was mentioning that we operate at 45% vacancy, whenever we used to fix meetings with the officials to address some of these issues or to seek their guidance on the way forward, we may have to constantly postpone the meetings because they were also heading multiple departments, and in between they were taking time for this. So with all these challenges, small steps have been taken by the team. We are getting a lot of support from the government, and government is also looking at it as a very positive step and thinking about expansion of this. There were a lot of things which we learned from the presentations which were being made here from Andhra. From Kashmir, for example, they have already done a small study. We would like to know more about the study and how it is helpful in planning the next step. So we look forward to your suggestions and ideas, and over to the team Jharkhand who has really worked on it. Thank you. जोहार, मैं मोहम्मद इजाजुल हक, मेरी बस मनीषा गगन, मैं डॉक्टर नीलम रानी SCRT झारखंड से, और मैम बालू शर्मा सबों की तरफ से, और मैं जितने भी झारखंड है के टीचर्स हैं जिन्होंने इस कोर्स में हिस्सा लिया है, उन सबों की तरफ से सादर संस्कार समर्पित है। मैं टीम झारखंड की तरफ से अपनी सारी बातों को प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले कि टीम झारखंड अपनी सारी बातों को रखे, मैं चाहता हूं कि जो टिस के जो लोगो हैं उस पर 4 लाइन आपके सामने कहना चाहता हूं। ये टिस का लोगो आप देख रहे हैं सर, उसको देखने से कुछ बातें आती होंगी आपको। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में यारो, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में यारो, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जैसे कि हर प्रोग्राम या हर कोर्स के बाद होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पे फीडबैक, उनके चैलेंजेस, उनके मिटिगेशंस, और साथ ही साथ फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, और इसी के मद्देनजर आप लोगों ने भी, जितनी भी टीम आई यहाँ पे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हमने कुछ नए अंदाज से इस बात को रखा है। हमने अपने जितने भी जर्नीज हैं या हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको 3 स्टेज में, 3 चरणों में हमने किया है। पहला तो यह है कि इस कोर्स से पहले हम क्या थे, हमारे यहाँ क्या स्ट्रेटेजी थी, या हमने क्या प्लानिंग कर रखी थी, या हमने क्या उनसे इंटरवेंशंस किए थे। सेकंड ये है कि हमने इस कोर्स के ड्यूरिंग में हमने क्या किया, और थर्ड कि हमने इस कोर्स के बाद हमारी क्या फ्यूचर की प्लानिंग है इन द कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड। जैसे मैम ने कहा कि झारखंड की जो हालात हैं, उन हालात के मद्देनजर हमें अपने कोर्सेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, उसकी बातें को हम रखेंगे आपके सामने, और बहुत ही कम वक्त लेंगे आपका। तो ओवर टू मनीषा। मनीषा, आप ये बातों को रखें। इस कोर्स से पहले की बात है, हमारे स्टेट में टीचर्स जो हैं वो दीक्षा, निष्ठा, मूव, स्वयं इत्यादि पोर्टल पर NEP 2020
के कॉन्टेस्ट में अपने कोर्सेज कर रहे थे। कोर्स करने के दौरान उनमें टेक्नोलॉजी को लेकर मिक्स रिएक्शन थे। कुछ टीचर्स बहुत कंफर्टेबल थे और वो खुद से विदाउट किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वे अपने वीडियोस, अपने ई कंटेंट का निर्माण कर रहे थे। वैसे ही कुछ टीचर्स इसमें पेसिमिस्टिक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से लें। और उसी समय जब पेंडेमिक आया तो ये जरूरत हुई कि स्टूडेंट और टीचर्स ये दोनों को कि हम टेक्नोलॉजी को सीखें और करना पड़ेगा, इस तरह की फीलिंग्स उनमें आई। और यही वो समय था इसके बाद कि जब हम जूझ रहे थे हमारे सारे टीचर्स कि अब सीखे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और उसी समय हमारे ये टिस का जो कोर्स है CTLT एक बूम बनकर आया। Thank you, ma'am. It was the need of the hour to orient and train teachers regarding the use of technology. इसी बीच में CTLT का कोर्स आया। CTLT का कोर्स it was boon for us. CTLT के कोर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये था कि शुरुआत में टीचर्स को लगा कि ये तो बहुत ही दिक्कत है, अनइजीनेस फील कर रहे थे। बाद में टीचर्स के जो मेंटर्स थे हमारे, उन्होंने इस काम को बहुत ही आसान कर दिया। उनका परसिवरेंट, उनकी परसिस्टेंट जो उनकी लेबर थी, जिससे हमारे काम आसान हो गए। जो चैलेंजेस हमारे सामने दो थे। फर्स्ट चैलेंज ये था कि हम अपने आप को ऑनलाइन मेथड से कैसे टेक्निक्स को सीखें। दूसरा चैलेंज ये था कि जो टेक्निक्स हमने सीखे हैं उनको क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें। इन दो चैलेंजेस को हमारे टीचर्स ने, जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से उसको लिया। और इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी तरफ से भी आया है वो पीयर असेसमेंट था। पीयर असेसमेंट बहुत ही अच्छा इसका एक कोर्स था, जिसमें हमें पता नहीं चलता था कि हमारे जितने भी काम किए हमने या हमारे लेसन प्लान से उनको कौन उसको चेक करेगा। ये एक नया अंदाज था हमारा। आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। और जो सीखने का जो कोर्स की जो मेंटरिंग हुई उसमें स्टेप 2 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि स्टेप 2 में आपको क्या लाना है। और PD प्लान्स के बारे में हमें बताया गया कि आपको अपने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्लान्स लेकर के जाने हैं और कम से कम 15 टीचर्स को ट्रेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा कि 30 के पीपल जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। सब लोग 30 को जान गए, 30 के क्या 30 ने टेक्निक को क्यों उसमें लाया है, इन सब चीज़ों की बातें समझ में आने लगी सबों को। और ये मेंटर्स जो हमारे थे उन्होंने 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 बड़ा हमें हमेशा हम लोग का सपोर्ट किया उन्होंने। जब भी हमें पूछा उनको हमें कभी इरिटेट नहीं हो पाई है ना। और ये हमारे कुछ PD सेशंस हैं जो मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए हमारे जितने भी ट्रेनर्स थे उन्होंने लिया इसको। यहाँ पर हमारी बात आती है कि हमने हमारी लर्निंग्स क्या हुई। आमतौर पर ये बात आती है ना कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो है ये तो आई थिंक 2002 में ही 21st सेंचुरी स्किल को कर दिया गया था। आज अभी हमारे 2022 की बात कर रहे हैं और उसमें 4 Cs की बात की जा रही है। तो आखिर कहाँ पे गैप हुआ है? मामला ये था कि सभी हम जानते थे कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो है, इसकी जो 4 Cs है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हम लोग KCPC की भी बात भी करते थे कि कीन ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में इसको कैसे ऐड ऑन करना है, ये एक टिस कोर्स ने हमें प्रोवाइड किया कि आप कैसे कोलैबोरेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को कैसे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे क्लासरूम के ट्रांजेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा जो हमने इसको सराहा है। दूसरी चीज़ ये कि ऑथेंटिक लर्निंग कब होती है, ये हम कैसे बच्चों सीखेंगे कि बच्चों ने किसी चीज़ को सीख लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। हमने देखा, हमने इस बात को महसूस भी किया है। हम आपको प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे भी कि कैसे बच्चे वो ऑथेंटिक लर्निंग की तरफ जाते हैं। दीपक मेडल में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग जो था, बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इन तीनों पे हमारी एक समझ बनी। जितने भी टीचर्स थे, ट्रेनर्स थे, उनकी समझ बनी। PACC मॉडल आमतौर पर ये बातें आती हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट द PACC मॉडल बट इट इज द PACC स्टेज, पैसिव स्टेज, एक्टिव स्टेज और क्रिएटिव स्टेज एंड कम्युनिकेटिव स्टेज। दीज आर द 4 स्टेजेस जो है अमीना चरनिया मैम का था। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को और हम लोग इसको बहुत दिल पे लिया है इस बात को। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं मैम। और इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग जो है ये भी अच्छा रहा हमारा और इस पर हम लोग की एक समझ बनी है।
ये हमारे कुछ हैं जो हम लोगों ने आईसीटी का क्लासरूम में को इनकॉर्पोरेट किया है। एक बात ये जो आपके सामने मैंने पहले भी कहा कि एक टीचर टीपीए के मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करता है। आफ्टर वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स फॉर फ्रैक्शंस, टीचर मनीषा showed the children some videos showing examples of different fractions of different objects and sizes. Along with this, she gave the children some games to play on the computer in which the children tried to identify the parts of different shapes by dividing them in different ways. After that, she prepared a PPT related to fractions and showed it to the children. In this way, she used a method of teaching by connecting technology with the content. तो हमने ये अभी ये न सिर्फ मनीषा बल्कि जितने भी टीचर्स हैं झारखंड के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, और आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट करना है अपने क्लासरूम में, ऑथेंटिक लर्निंग को कैसे प्रमोट करना है, उसकी बातें आ रही हैं। आफ्टर द कोर्स इसके पहले मैं टीपैक मॉडल पे एक बात और बोलना चाहूँगी। जैसा कि पहले बताया था कि टीचर्स के बीच में एक मिक्स रिएक्शन था टेक्नोलॉजी को लेकर, उसी तरह से एक मिसकंसेप्शन भी था कि कहीं ये टेक्नोलॉजी उन्हें रिप्लेस नहीं कर देंगे, ये टेक्नोलॉजी कहीं टीचर्स का सब्स्टिट्यूट तो नहीं। परंतु जो ये टीपैक मॉडल इस बात की समझ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए कि किस तरह से हम अपने पेडागोजिकल नॉलेज को, कंटेंट नॉलेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू और इफेक्टिव और ऑथेंटिक बना सकते हैं। इससे ये मिसकंसेप्शन हम टीचर्स के बीच वो क्लियर हुआ कि ये ICT is not a substitute of teachers but it is a supplement for teachers। तो इसके बाद जैसा कि मैम ने झारखंड के कॉन्टेक्स्ट की बात बताई कि हमारा जो स्टेट है बहुत डाइवर्स वो भी जोग्राफिकली है, कल्चरली है, लैंग्वेज के रूप में भी है, और इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हम लोग फेस करते हैं, खासकर जब हम इंटीग्रेशन ऑफ जो ICT हमारे जब PD प्लान में होता है, तो जब इसे जब जमीन पर स्कूल में और बच्चों के बीच में उतारना होता है तो कुछ चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज झारखंड के लिए है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसका ये हम लोगों ने देखा कि ये ट्रैफिकिंग का सबसे मेन कारण है कि वहाँ के जो रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनका कनेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल नहीं है। तो ये ICT की यूज करने से हम उनको उस आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बता पा रहे हैं, हम उन्हें उस पूरी दुनिया में बाहर का जो प्रॉब्स एंड कॉन्स है उनके बारे में उनको क्लियर कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी को भी इसके थ्रू अवेयर कर पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चाइल्ड मैरिज और टोबैको के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ये हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये ICT का एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास हो रहा है। हमने जैसा कि कहा कि जो ICT हमारे यहाँ जो शैडो जोन है, अराउंड 38% शैडो जोन है, वहाँ पर ये जो ICT इंटीग्रेटेड जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या आ रही है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट और लोग इस पे काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों में पहुँच पाए। एक और जो समस्या जो हमारे यहाँ है कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि एक ही मोबाइल फ़ोन है, अराउंड 30% बच्चों के पास हमारे झारखंड में मोबाइल स्मार्टफोन है, जिसका यूज़ करके वो अपने ICT से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ वहाँ पाया गया जो हम लोगों ने फेस किया कि अगर एक घर में मोबाइल फ़ोन है तो उसका यूज़ वहाँ के बॉयज़ करते हैं, वहाँ के गर्ल्स नहीं करते। तो इसमें हम टीचर्स को उस फैमिली को कन्विंस करना पड़ा, बाय टेलीफोनिक या फिर पर्सनली उनको जाकर कि नहीं आप लड़कियों को भी दीजिए। और उन लोगों के मन में एक ये भी होता है कि अगर लड़कियां मोबाइल लेंगी, क्योंकि वो ये उन लोग के दिमाग में है कि लड़कियां मोबाइल को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगी, बॉयज ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ये भी एक दूसरा रीज़न है उनको नहीं देने का। तो ये मिसकंसेप्शन या ये चीज़ दूर करना पड़ता है हम शिक्षकों को कि वो अपनी बच्चियों को भी मोबाइल दें, वो भी सीखें, ताकि इस जेंडर इक्विटी के रूप में के लिए हम आगे कुछ काम कर सकें। तो ये है हमारा अब तक का जो सफ़र
अब इसके आगे के लिए मैं डॉक्टर नीलम को इनवाइट करती हूँ कि आगे हमारा ये काम टेस्ट का जो भी कोर्स है उसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे। थैंक यू मनीषा मैम। तो लगभग सारी बातें हमारी पूरी टीम ने कह दी हैं और मैं SCERT झारखंड की ओर से कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि हमारे स्टेट की ओर से ड्यूरिंग टीस कोर्स या फिर आफ्टर टीस कोर्स जो भी चेंजेस आए हैं हमारे टीचर्स के बीच में और टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट के बीच में, तो उन बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे कि सभी अपने स्टेट के ये बताएं कि हाँ कितने टीचर्स ने इसमें फर्स्ट फेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, आफ्टर दैट सेकेंड फेज के लिए कितने टीचर्स का सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट फेज में हमारे स्टेट से 160 टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 93 टीचर्स ने सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट किया है। और अभी जितने भी 93 टीचर्स ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है तो उसके लिए SCERT रांची में 30 दिसंबर को इसकी ओर से, और थैंक यू पारुल मैम यूनिसेफ की पूरी टीम को कि 30 दिसंबर को हमारे स्टेट में सभी टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाएगा और इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी वितरण समारोह रखा गया है। तो फिर एक चीज़ इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे अभी मैम मनीषा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप लोगों के समक्ष रखा है कि किस किस तरह के चैलेंजेस हमारे स्टेट में इस कोर्स को ही लेकर के नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर ICT के यूज़ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में रखा गया है। तो हमारे SCERT की ओर से जो एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है कि ICT लैब लगभग 1500 स्कूल में, अभी प्रेजेंट टाइम में 1500 स्कूल में ICT लैब के इम्प्लीमेंटेशन का काम हो चुका है और लगभग 1854 स्कूल में जो ICT लैब एज वेल एज स्मार्ट क्लास, इन सभी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और बहुत जल्द इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। और टाइम टू टाइम हमारे SCERT की ओर से, चूँकि दिस कोर्स जब तक नहीं आया था उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमारे टीचर्स के द्वारा बनाए जा रहे थे और बच्चों के बीच में उसे रखा भी जा रहा था। लेकिन उस वक्त क्या था कि टीचर्स टेक्निकली उतने साउंड नहीं थे, लेकिन आफ्टर दिस कोर्स उनमें काफ़ी जो टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट प्लस की उनमें नॉलेज में भी वृद्धि हुई है कि कैसे हम ICT के विभिन्न टूल्स का यूज़ करके अपने एजुकेशन में बदलाव ला सकते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है, जो चिल्ड्रन के लिए जो हम लोग निर्धारित है या फिर जो हम अपने स्टूडेंट के डिमांड के अनुसार की, चूँकि सभी बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी होती है या फिर बुद्धि लब्धि कहेंगे एक जैसी नहीं होती है, तो लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गोल है। तो उस दिशा में भी हम लोग ICT लैब को एक विकल्प के रूप में बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं और इसलिए हमारे स्टेट की ओर से ICT लैब पे बहुत काम किया जा रहा है। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि लगभग 1500 स्कूल में ICT लैब के माध्यम से क्लास 6 to 12 के क्लासेस हमारे यहाँ हो रहे हैं और ICT लैब के माध्यम से कक्षाओं का जो संचालन है हमारे स्टेट में 2 फेज में हुआ, जिसमें पहले फेज की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसको कि 4 एजेंसी के द्वारा उसमें कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे थे और अभी प्रेजेंट टाइम में सेकेंड फेज ऑनगोइंग है और इसे 2 एजेंसियों के द्वारा इसमें कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एज वेल एज जो हम लोग दीक्षा DG 7 के तहत हमारे झारखंड स्टेट में जो भी कंटेंट बनाए जा रहे थे या फिर टीचर्स के जो कंटेंट थे वो भी अभी इसमें दिखाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये जो 2 एजेंसी के द्वारा भी जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ICT लैब में, उसके अलावे भी अन्य एजेंसियों को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि स्मार्ट क्लास और ICT लैब साथ साथ में हो सके। और जो ICT लैब के माध्यम से कक्षाओं का जो संचालन हो रहा है उसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है, स्पेशली वहाँ जिन स्कूल्स में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स की कमी है तो वहाँ एक बहुत ही बेहतर विकल्प है कि टीचर्स अगर नहीं है तब भी ICT लैब के माध्यम से विषयवार कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। तो मैं इन सभी चीज़ों के लिए हमारी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलती हूँ,
स्टेट के सभी टीचर्स को कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने टीस कोर्स को किया और अभी सेकेंड फेज में वे अपने डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 टीचर्स को इन लोगों ने एज ए मेंटर ओरिएंट किए हुए हैं। और स्टेट की ओर से हमारा अभी एनसीईआरटी की ओर से भी आईसीटी के लिए एक ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। और दिसंबर में ही हमारे कुछ टीचर्स को फिर डाइट फैकल्टी मेंबर को भी हम लोगों ने RI भुवनेश्वर में आईसीटी के ओरिएंटेशन के लिए भेज चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टेट आईसीटी ओरिएंटेशन के लिए या फिर सभी टीचर्स को आईसीटी की बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए अच्छी कोशिश हमारे स्टेट के द्वारा एससीईआरटी के द्वारा की जा रही है। तो मैं अब हमारे जेसीईआरटी झारखंड की पूरी टीम एवं झारखंड के सभी टीचर्स और पूरे स्टेट की ओर से मैं हमारे स्टेट की यूनिसेफ की कोऑर्डिनेटर पारुल मैम को और स्पेशली टिप्स मुंबई के पूरे टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने हम सभी के लिए दिया, सभी स्टेट के लिए। और तो थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आज का ये जो सभागार इतने सारे स्टेट के सभी टीचर्स और स्टेट ऑफिशियल और अन्य सभी यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जो भरा पूरा एक परिवार जैसा जो फील हो रहा है, तो इन सभी के लिए टिप्स मुंबई की टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू कि आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। ये आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम सभी एक दूसरे से फाइनली रूबरू हुए। अब तक तो हम लोग मीटिंग ऑनलाइन ही मिलते थे, लेकिन आज मिलने का मौका मिला, तो थैंक यू। और विविधताओं में एकता के राज्य के रूप में जाने जाने वाले हमारे झारखंड राज्य की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू।